आज डॉक्टर, कल फोटोग्राफर, कल टीचर, कभी देवर, कभी सेल्समैन, कभी डिलीवरी बॉय. Every day I'm playing fantasy world. क्या एक्टर लाइव आज तो मज़ा आएगा. She was that cool. इंडियन फेसेस और इंडियन बॉडीज का बहुत डिमांड है. फॉरेन कंट्रीज में टीचर्स का भी ओनली फैंस है. नॉर्मल नाउ. तो मैं वहाँ जाके I'll be lost. हर इंडियन लड़के का करियर ऑप्शन काश मैं जॉनी सिंस बन जाऊं या मैं कोई एडल्ट स्टार बन जाऊं. So do you think like someone being in India can actually opt this as a career? I don't want them to. Hello guys, welcome back to another episode of Mixed Fruit, and this can be and I'm sure will be the most juiciest ever podcast on this channel till date. So today we have very notorious, very great personality, Shakespeare Tripathi with us, who is an adult star, and you must have seen. If you haven't, then you will see him today on this conversation. So, right on you. How are you doing? Yeah. Thank you. I'm doing great. That was a great welcome, and I think I'm the most apt celebrity to be on this podcast because it's mixed fruit, and I think I'm the banana. So I'm the right banana. So at its peak. So yeah, I'm having a good time. After you told me I'm the fruit, I am feeling much better. I want to be the avocado because it's like a superfood right now, but banana is good. Potassium and good, high on energy. Yes. You take a lot of care of your health, I think. I have to. Being a model, being a Yes, superstar. yes. From the beginning, and I always when I was new and I was not, I didn't know, so I was doing everything. I was eating everything. So now I become more organic because I could see the benefits. Okay. So a lot of methi in my diet and a lot of spinach. So a lot of bananas. And strawberries and berries apparently, so a lot of cherries all the time. Peaches. Peaches, yeah. Brinjal. What do you prefer, cherries or peaches? Cherry or peaches? Peaches. Peaches. Yeah. Oh, you're more like peaches person. Peaches. Yeah. It's a choice, I mean, It's at a the end of choice, the day. I like cherries too. But if given a choice, you like peaches more. But why? Why do I have to choose? I'm going to Exactly. take it all. Yeah. That's the right answer. So you You're can't getting just, both. it's a mixed fruit platter. I've never seen a guest integrating our name better than this. Thank you so much for doing Thank that. you so much. You're welcome. So I am very curious about one thing. Like your name is Shakespeare, but your Yes. surname is Tripathi. Like, what is the story behind this? So I'm a Hindu Brahmin by birth. I was born in Orissa. My parents are literary figures. Like my dad's an English professor. He's got his postdoctorate. So he's a Dr. Tripathi. And my mother, like Dr. Vijay Malia. So not a hospital doctor, but a doctorate in literary science or whatever. And my mother is also a school teacher. Okay. So that's the English connection. And when they met, it was a book of Shakespeare in my dad's hand, which my mother took. So that's Too the romantic. Shakespeare. Very romantic. Yeah. And that's how Shakespeare and Tripathi. Tripathi, of course. Do you have a sibling? I have a sister, Elder Okay. sister? older sister, Older sister. How old? just a year. Oh, that's Let's say, oh, nice. Her name is Leslie, which means beauty and luxury in Oh, Italian scripture. Damn, that's The a very, parents spent very some time, unique yeah. name, yeah. So yeah, I mean, I'm unique. How do you introduce yourself to like general, if you're meeting, if you're meeting for the first time, how would you introduce yourself? So after I got famous on the internet for varied reasons, I straight away say I'm an adult film star. Okay. Earlier I used to say I'm a model, I'm an actor, I've done international cinema also, but now I don't want to waste anybody's time. I want them to know who I am, so that अगर बात करना है, दोस्ती रखना है, तो I just say I'm an actor. Sometimes I say I'm an actor. Suppose it's an older person, like an older woman or something. Then they ask me, obviously, what have you done? Have I seen you in somewhere? So वहाँ से I'm more explicit. Okay. Then you have to explain. If you're you have seen. 5G on your phone, then definitely. And you have private tabs. Then, of Yes. course. So, and a lot of times they say, when I was walking into the building, so there's these guys in pink shirts over there. So they were like, आपको देखा है, आपको कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा पर देखा है. मैंने बोला नेट पे देखा होगा. हाँ, so so that's Oh, got it. So I don't waste anybody's time. No time to waste time. Yeah.
So I say straight away I'm an actor, and I'm like yesterday I was talking to somebody from the film industry regarding work. I said I've done a lot of work, like I've done television, films, ads, but I'm known for my adult films. That's where I got fame. Recognized. So they was like, yeah, I know that. So I was like, yeah. So that's it. Okay. So how you like completely got into this? This is a long journey. It's not like I just got into this overnight. Actually, I got into it overnight, but my journey. But it was a day shoot, huh? It was That's a day, such it was, a good pun It was a intended. day shoot, but my journey as an actor started when I was a kid. Like I was 18, and before that I was a cabin crew. That's how I came to Bombay. Oh. I was born in Orissa. I was raised there, but I came to Mumbai because I got selected for an airline company as a cabin crew. Okay. So, and on my flight, I got an offer for an ad film, which was with MS Dhoni. Yeah, we saw that, yeah. Yeah. So I resigned because as a cabin crew we can't appear in films and television. I resigned. I went for the audition. It was directed by Diwakar Banerjee, and I got the ad. I just got the ad the next day or something. They shortlisted me, and that's how my journey started in acting. Okay. Then slowly, of course, as actors in Bombay, it's not easy. Totally. Especially, I mean, forget about the nepotism and all that. If you're not from Bombay, I am not from Bombay. तो यहाँ पे सस्टेन करना, यहाँ पे रहना, खाना पीना बहुत मुश्किल है. It's very expensive, and somehow I am drawn towards a luxurious life. So imagine getting that, balance. वो बस में घूमना and all But that is and also that. required, I feel. No. नो आई मीन किया है मैंने. लाइन में खड़े होके BST बस में जाना, फिर वड़ा पाव खाना, शुगर केन जूस फॉर ब्रेकफास्ट एंड वड़ा पाव फॉर लंच एंड डिनर, समोसा, ये सब मैंने किया. काम मिलना बहुत मुश्किल था उस टाइम पर. मिलता था, जैसे 100 ऑडिशंस दिए तो 1-2 लग जाता था. और अभी तो आई थिंक मतलब अभी आई थिंक घर से ऑडिशन बना के भेजते हैं लॉकडाउन के बाद. Yeah. उस टाइम पे क्या था, आपको स्टूडियो में जाना पड़ता था, जहाँ पे भीड़ मतलब मुंबई Waiting, लोकल वाले. yeah. आप हैव यू गाइस बीन ऑन मुंबई लोकल? सो इट्स इवन वर्स बिकॉज वी आर ऑल गुड लुकिंग एंड ड्रेस्ड वेल, बट वी आर एक्चुअली बिहेविंग लाइक हूलिगन्स. एंड मेरा ले लो सर, मेरा ले लो, somebody स्टैम्पिंग ओवर यू, आपको you're judged for your looks, fit, not fit, like. It's very subjective at the end of the very and very humiliating. Yeah. मतलब आपका जो भी अंदर का जो मेरा ये खोया हुआ जो क्या बोलते हैं प्राइड और सेल्फ एस्टीम, ये बहुत बाद में आया. उस टाइम तो इट वॉज वेरी बैड. सो आई वॉज डूइंग एड्स, आई डिड अ लॉट ऑफ गुड वर्क ऑल्सो. बट ऐसा है कि आपने एक अच्छा काम किया है, आप इवन ट्रैवल्ड अब्रॉड, आपने शूट भी किया, बट आपको वापस यू हैव टू ऑडिशन, वापस आपको 6 घंटा बैठना पड़ता था. वो करते 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 मैंने अराउंड 40 कमर्शियल्स किए लीड्स में, नॉट ओनली फॉर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड सब हमने शूट किया, बट आउट ऑफ इंडिया शूट्स होते थे. फिर मैं आ गया टेलीविज़न पे, मैंने कुछ काम किए टेलीविज़न पे, फिल्म भी किए मैंने किया फिल्म, प्रेम चोपड़ा सब थे उसमें. शादियाँ भी बाकी है. वो कान फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी. Oh damn. आई एम सरप्राइज्ड हाउ आई डिड गो, एंड स्मॉल सेंटर्स में अच्छा बिजनेस भी किया था. वो सब कर रहा था, बट कंसिस्टेंसी मिलना, काम पाना, जैसे आप लोग कैसे लगातार कर रहे हो ना, हर हफ्ते आपका कुछ ना कुछ रिलीज़ है, हमारा कुछ नहीं. मतलब ऐसे महीने चले गए, आपको एक शूट नहीं मिला. घर से पैसे आ रहे हैं छोटा मोटा, क्योंकि उनको पता है कि आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वेरी यंग, और शेयरिंग, घर में रहना, वो सब कर रहा था. तो फिर थोड़ा करियर थोड़ा ऐसे उठने लगा था. मुझे एक टीवी सीरियल भी मिला था जी पे, 7 PM एक प्राइम टाइम शो कर रहा था. तभी लॉकडाउन आ गया. तो लॉकडाउन में तो सब बंद, बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल था और अनसर्टनिटी था, और बहुत सारे लोग दे वर लाइक डाइंग, एंड सेलिब्रिटीज पास्ड अवे लाइक सुशांत सिंह एंड ऑल. तो ये आप पे कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स यू. lot of people were actually killing themselves उस टाइम पे. Depression. Yeah. They left lot of people left Mumbai. Some just got married. पता नहीं क्या हो रहा था. तभी मुझे एडल्ट फिल्म्स का ऑफर्स आने लगे, क्योंकि एक तो एक्टर्स कम थे मुंबई में, और जो करने के लिए रेडी जो भी. तो आई थिंक बहुत लोगों को ऑफर्स आए थे. मैंने 1-2 करना स्टार्ट किया, और जुलाई 13 आई रिमेंबर फर्स्ट शूट था मेरा, July 13, 2020. 2020.
और बस overnight. But I mean, you did work for it. Yes, I worked for it. Yeah. So I went on set और मेरा पहला शूट हुआ वहाँ से my career actually took off and I became famous. Like पहले क्या था, I was doing a lot of work. आप अगर मेरे ads देखेंगे, अरे ये तो मैंने देखा है कभी इंटरवल में, कभी सिनेमास में भी आते थे मेरे ads. But nobody has a recall value or like the spotlight आप पर नहीं, आपको नाम नहीं जानते. अभी फिर क्या हुआ ना, मेरी इंडस्ट्री में मैं बहुत जल्दी स्टार बन गया. Okay. तो घर बैठे काम आने लगा, पैसे आने लगे, तो I started taking this seriously. Do you think this like particular work industry has money, good money to offer? I won't say it has good money, but it has, you can at least survive Okay. as an actor, as a human being in a city like Mumbai. You can survive, you can eat food, you can go out, you can get married also, provided you live a very average life. But you can survive. आप सांस ले सकते हो, आप आगे का सोच सकते हो. You can fulfill a lot of your hobbies and dreams, and you feel good about yourself. Okay. I mean, not about the sex part. That you're independent. And You're yeah, independent. You yeah. can think a lot of things. You can become a producer. You can open avenues. You know, बहुत कुछ हो सकता है. Do you think the taboo in India that people have about all of this affects the job a little Of bit? course, it does. It does. When do you think? I mean, it's very vague to like ask this question to anybody. Arey, you have no idea. My best friends, when they take me to these high-profile parties, they say, "Don't tell your real name." So I just went with this name, Rohit. I said, "Hi, I'm Rohit. Hi, I've seen your web series." I looked at her and she was like, "Okay, fine." So they feel shy. My friends, there's so much of taboo. I have overcome it because I became a rebel. Because मुझे यही करना है, यही मिल रहा है. काम तो वैसे कुछ था नहीं पहले. I was only struggling. So I met a lot of big people also. They didn't promise me any work, but they gave me hopes कि हम काम करेंगे. But कुछ नहीं हो रहा था. यहाँ पे at least I have something to do. तो मुझे इन लोगों को इनका बातें सुनना, they'll make you feel like shit. क्या फ़ायदा बताओ? They are not going to pay your bills ना. आपको खाना पीना तो नहीं देंगे. आपको अपना खुद का ही देखना पड़ेगा. तो I started avoiding such people and I made my own world. Okay. Which is very beautiful, which is very colorful. So yeah. So now, since you have been working in this industry for the last 2-3 years, I guess, 4 years. Like active, I'm since 2 years. Since 2 years. But on an average, if you see, I've been in this industry for 4 years, 3.5. But I've been actively doing on and off for 2 years. Okay. So when you like got the first opportunity to be an adult star. So the first film I did was like it was erotic. It was not like Fully. Fully, yeah. yeah. It was not like XXX. So I started with erotica. So What is erotica? erotica is fake sex. Okay. The look is very real, and there's no actually removal of the lower part in a way. आपका जो अंडरवेयर रहता है, लड़की टॉपलेस रहती है. तो that's erotica, and there is no nipple sucking or pressing of the boobs, but it's just she's just shown topless. Okay. And there's humping scenes होते हैं, लंबे kissing scenes होते हैं. मतलब जो आप फोर प्ले करते हो वही सब रहता है, वो लंबा रहता है, बट रियल नहीं होता इरोटिका. जैसे आप हिंदी फिल्मों में भी देख चुके होंगे, हॉलीवुड फिल्मों में देखते रहोगे, यू नो, लाइक 50 Shades of Grey. नहीं, वो थोड़ा एक्सप्लिसिट था. उससे थोड़ा कम. Like I'll give you very simple examples. पुरानी फिल्में देखे हो कभी? तो if you see a lot of old films, Shoot Out at Wadala, there's a humping shot of John Abraham, bedsheet डाल के वैसे. There was one in this movie also. Vicky Kaushal वाली. हाँ, मैं समझ गया. मसान में भी like it starts off with that. Yeah. उसकी एक और फिल्म आई थी जिसमें रमन राघव करके, उसमें भी बहुत रोमांस था. मतलब तो यही होता है, लाइटिंग थोड़ी डिम होगी. दिस इज इरोटिका. इट्स मोर टिटिलिएशन. लगेगा आपको शायद कि रियल हो रहा है, बट इरोटिका. फिर उसके तो आई स्टार्टेड माई करियर विद दैट, वेयर देयर इज. Was it for a series? It's crazy. It's like it starts off like a series, but it's actually a short film. 20 मिनट की फिल्म थी, एक ही दिन में शूट हुआ था. एक ही दिन में 20 मिनट का शूट, मतलब 25-30 मिनट पकड़ लो एवरेज. एक गाना भी था उसमें. So तभी मेरे बाल बढ़ गए थे क्योंकि लॉकडाउन था. I was looking like Bobby Deol. Okay. I've got wavy hair.
तो जैसे बढ़ता है ना तो यहाँ पे कर्ल्स आ जाते हैं. So they gave me that soldier वाला look, black sleeveless and Okay. I was playing a photographer. तो बॉबी डियोल का एक गाना था ना, सोल्जर सोल्जर हाँ. मीठी बातें बोलकर. तो वैसे ही मेरा एंट्री दिखाया, वैसे ही थोड़ा शॉर्ट्स लिए थे. कुछ लोग बोलते भी थे ये बॉबी डियोल लग रहा है. Was it like foreplay? सॉरी, Was it foreplay for the series? Or was it like... नो आई एम टॉकिंग अबाउट माई लुक. अब फोर प्ले तो बहुत होता है उसमें, Hmm. किसिंग, टंग किस बहुत लंबा होता है नेक पे. फिर यहाँ पे कुछ टचिंग नहीं होता बेसिकली. मैक्सिमम यू कैन जस्ट पुट योर हैंड एंड देन वी पुट अ बेड शीट नीचे, ऐसा रोल कर देते हैं लाइक या तो एक छोटा सा कुशन ले लेते हैं, उसको रख के हम्पिंग शॉट्स करते हैं. फिर हम जो लड़कियों का जो इनर वेयर रहता है ना उसको मोड़ देते हैं, एकदम पतला बना देते हैं, उस पर हाथ रख देते हैं. तो अगर कोई दूर से देखेगा तो वो लगेगा आपको कि Naked है. पूरा रियल नेकेड है, पर आई एम ऑल्सो वेरिंग माई अंडरवेयर. हमने उसको मोड़ा हुआ है एंड वी जस्ट डूइंग दैट हम्पिंग शॉट. Movie magic, yeah. मैजिक. सो जस्ट प्रॉपर एक्सप्रेशंस के साथ, टेक्निकली, कैमरा. दैट्स वेरी erotic एक्चुअली. Okay. एंड पीपल आर लाइक यर्निंग कि काश रियल होता, काश कुछ और देखने को मिलता. दे लाइक जूमिंग इन जूमिंग आउट, यू नो. बट और कुछ लोग बोले, अरे सर आपका अंडरवेयर दिख गया. दे यूज्ड टू मैसेज मी ना ऑन सोशल मीडिया. So that's erotica. That's how I started my career. Okay. Then you eventually got into foreplay. Eventually उसके बाद क्या हुआ कि it's like a swamp. आपको खींचता है. It's like a circle. तो अब मैंने कर लिया, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया और लगातार काम हो रहा था. सेम डे पेमेंट्स होते हैं, ओके, जो भी छोटा मोटा. तो एक ही दिन का शूट होता था और तभी लॉकडाउन था, तो बाहर जाने का कोई चांस नहीं. और मैं थोड़ा उस टाइम पे थोड़ा अपसेट था क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन माय लव लाइफ. Okay. मेरा जस्ट ब्रेकअप हुआ था 5 साल का. मैं लिव इन में था उससे पहले. तो मेरे लिए दिस वाज अ गुड आउटबर्स्ट, लाइक यू नो, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए. आई यूज्ड टू मीट दिस न्यू गर्ल्स, साथ में ट्रैवल करना. इट्स लाइक अ पिकनिक. आप गए सेट पे, छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स होते हैं, इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं बहुत, और आपको कुछ बोलना है. बेसिकली इफ यू आर एन एक्टर यू विल एन्जॉय इट बिकॉज आप खेल सकते हो. मतलब एक्चुअल काम तो कुछ और है, बट जो स्टार्टिंग का भी हम दिखाते हैं कि सपोज आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर, आज डॉक्टर, कल फोटोग्राफर, कल टीचर, कभी देवर, कभी सेल्समैन, कभी डिलीवरी बॉय, यू नो, एवरी डे आई एम प्लेइंग. इट्स लाइक फैंटेसी वर्ल्ड. तो आप बहुत कुछ कर सकते हो. तो आपका अंदर का एक्टर भी बाहर आता है, वो भी मज़ा आता है. और फिर लोग आप पे बहुत वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दे डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आप डायरेक्टर से ज़्यादा फॉरवर्ड हो, आप सीन्स निकाल रहे हो, कोस्टार्स आपके साथ कंफर्टेबल है. तो इट्स लाइक अ वेरी गुड. अगर शूट नहीं होता था मैं घर पे बोर होता था. अरे यार आज कुछ नहीं, आज घर पे बैठना है, सो बोरिंग. तो उसके बाद आया जैसे वो होने लगा तो लोगों को लगता था मैं बहुत बोल्ड हूँ, पता नहीं क्यों. हमारी इंडस्ट्री को बोल्ड इंडस्ट्री बोलते हैं. तो फिर लोगों ने बोलने लगा अच्छा थोड़ा ज़्यादा. तो देखिए आपकी फिल्म बिजनेस करती है ना, इट्स ओनली बेस्ड ऑन द एक्टर्स गुड लुकिंग है या जो भी स्क्रिप्ट के हिसाब से है. और हर इंसान की अलग फैंटेसी होती है. किसी को भरी हुई लड़की चाहिए, किसी को पतली चाहिए, किसी को यंग, किसी को यू नो ओल्डर, जो भी. तो फिल्में चलती है तो उनको और बोल्ड चाहिए. तो धीरे 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 क्या होने लगा ना, मुझ पे प्रेशर आने लगा कि वो जैसे हमारे सेट्स पे, मतलब आई डोंट नो पीपल नो दिस, बट हमारे सेट पे लड़कियों का सेफ्टी अटमोस्ट प्रायोरिटी होता है. Okay. उनको आते हैं, मतलब स्पॉट बॉय उनका बैग उठाता है, उनके लिए सेपरेट रूम होता है, उनके लिए खाना पीना, तो जैसा वो बोलते हैं. तो ये शुरू कैसे हुआ, जैसे कुछ लड़कियां बोलती हैं कि मैं फुल न्यूड, मतलब मैं टॉपलेस नहीं होंगी, या तो मैं इनर वेयर नहीं निकालूंगी, मैं लंबा बॉक्सेस पहन के आई हैं. तो वो लगता है कि कुछ वो हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं, कैसे हम दिखाएंगे ऑडियंस को कि सेक्स हो रहा है. तो वो लोग क्या करेंगे ना, मेरा अंडरवेयर निकाल देंगे, तो कुछ तो न्यूड मिल गया ना. तो उससे एक आपको फिगर आता है ना दिमाग में, विजन की रियल कुछ हो रहा है. तो उससे वो बोल्डनेस का लेवल बढ़ने लगा. और वो फिल्में और चलने लगी, प्रोड्यूसर्स ने बहुत पैसे कमाए, तो इससे थोड़ा और बोल्ड हुआ, 4-5 हज़ार ज़्यादा देने लगे. आप कंफर्टेबल थे उसमें? फर्स्ट में तो ऑब्वियसली नहीं. अब फर्स्ट में मैं बहुत वो था, एंग्शियस, या ऑफ कोर्स, मतलब हाँ, मतलब गूज़बम्प्स आ रहे थे. एंड शी वाज अ प्रोफेशनल, जो मेरे ऑपोजिट थी. शी हैड डन अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड वेरी पॉपुलर दैट टाइम, वेरी ब्यूटीफुल. उन्होंने भी इंडस्ट्री छोड़ दिया है. तो
वो बहुत सुंदर, बहुत कंफर्टेबल थी, और उनको देख के मेरा काम भी अच्छा हो रहा था। और जैसे मैं सेट पे आया, वो आती है, मैं उनको जब इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो तो हमारे डायरेक्टर को बोली, वाह सर क्या एक्टर लाए, आज तो मज़ा आएगा। शी वॉज दैट कूल। तो वेरी फनी लड़की थी, मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, मस्तीखोर थी। तो उससे और मैं कैसा था कि मुझे उस टाइम तक मैंने इतनी फिल्में कर ली थी, और फेमस जो भी हो गया था इंडस्ट्री में, हर जगह से मुझे कॉल्स आते थे, यार तेरा वीडियो देखा, तू कब से ये सब कर रहा है, क्यों कर रहा है। कुछ लोग अच्छा बोलते थे, कुछ लोग बुरा बोलते थे, तो मैं थोड़ा रिबेलियन मोड में था। तो मैं कंफर्टेबल था आंसरिंग योर क्वेश्चन। तो आई डोंट नो हाउ, पता नहीं कैसे मैं कंफर्टेबल हो गया। और क्या होता है ना, एक दिन का शूट होता है, लंबा स्टोरी होता है, 3 एपिसोड्स का। वो लोग बहुत चालाकी से हमसे 1 दिन का पैसा दे के 3 दिन का काम निकाल देते हैं। तो अगर वो चैं कर रही है, आप भी वहाँ टैंट्रम डालोगे, तो आपका ख़त्म ही नहीं हुआ शूट। तो 4 बज गए, आपका 7 बजे का कॉल टाइम था सुबह के, तो रात के 4 बज रहे हैं, मतलब दूसरे दिन के सुबह के 4 बज रहे हैं। तो जो भी हो करो और हमें जाने दो। तो वैसे स्टार्ट हुआ, जैसा बोलते गए मैं करता गया। और बीच में मैंने ये भी देखा था, कुछ फिल्में थी, वो डायरेक्टर मतलब अपना जो OTT ओनर्स होते थे, ज़्यादा फिल्में बोल्ड होगी तो उनको ना बहुत कमेंट्स चाहते थे कि शेक्सपियर को ऐसे करवाओ। मैं टीवी कर चुका था ना, एड्स कर चुका था, तो लोगों को एक क्रेज़ था, क्योंकि बाकी के जो लोग थे दे वर प्रैक्टिकली अननोन, और वो लोग क्या कर रहे हैं, नोबडी रियली बॉदर्ड। मेरा बिकॉज ऑफ माई कनेक्शन विद फिल्म्स और जो भी मेरा था पहले से, पीपल वाले इसको ऐसा करवाओ, उसको वैसा करवाओ। और कभी कभी क्या होता है ना, व्हेन यू आर डूइंग दीज सीन्स यू गेट कैरिड अवे, आपको पता नहीं चल रहा है कि रोलिंग, वो लोग एक्चुअली रोल कर रहे हैं, और हमें क्या लग रहा है ये मिड शॉट है या क्लोजअप है, वो एक्चुअली लॉन्ग शॉट चल रहा है, और आपको तो यू आर लॉस्ट। दोस गर्ल्स आर आल्सो प्रिटी। तो ऐसे स्टार्ट होने लगा बोल्डनेस का सिलसिला, थोड़ा एक्सप्लिसिट होने लगे। Talk about the taboo thing, only bringing that back. Do you think कि if you go outside India somewhere Yeah, and do the same thing and continue what you do, would that be beneficial for you? 100%. Have you considered it? I have a lot of offers also बाहर जाने के लिए, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर तो ऐसे बहुत सबके ओनली फैंस है। आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में टीचर्स का भी ओनली फैंस It's normal now. डॉक्टर्स का है, नर्सेस का है। तो मैं वहाँ जाके आई बी लॉस्ट, इवन दो इंडियन फेसेस और इंडियन बॉडीज़ का बहुत डिमांड है, बट यहाँ पे या ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए तो हमारी इंडस्ट्री इतना बूम किया, क्योंकि फॉरेन के तो भरे पड़े हैं, ब्लॉन्ड्स के, लाइट आइड, पर इंडियन फेसेस, इंडियन कॉम्प्लेक्शन, और स्पेशली जो जैसे हमारी फिल्मों की सीरीज ना गांव वाले, उसका बहुत उनको क्रेज़ रहता है। ऐसे Tier 3 या फिर हाँ, ऐसे जो village सिंपल story. स्टोरीज, पसीने में ब्लाउज कुछ फट रहा है, आई डोंट वांट टू नेम दोस प्रोफेशंस, बट ऐसा कुछ है, साइकिल पे आया है, कोई ऐसा, इसका बहुत क्रेज़ है। और शर्माना, वो इंडियन का जो एक स्टाइल भी है, थोड़ा सहमे हुए, थोड़ा सिस्कियों में करना, वो ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता है। वो फक मी बेबी, ये सब लोगों ने देख लिया है बहुत, बट वो इंडियन वाला उनको अच्छा लगता है। तो बाहर इंडियन बहुत सारे फिल्म्स की ज़्यादा डिमांड है। बहुत है, जैसे बहुत सारे, जैसे आप मेरा इनसाइट्स देखेंगे, मैक्सिमम लोग मेरे सोशल मीडिया पे बाहर से आते हैं, ओह, अमेरिकन्स एंड मिडल ईस्ट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उनका यही होता है कि इसके साथ करो, वैसा करो, कपड़े पूरा मत खोलो, कपड़ों के साथ करो, सब लिखते हैं। ये आपको लोग DM करते हैं? हाँ। Damn. और हम वो स्क्रीनशॉट्स फिर प्रोड्यूसर्स को आते हैं, तो वो बोलते हैं अरे ऐसा डिमांड आया है, ऐसे करना पड़ेगा, अभी तुमको ऐसा गमछा डालेंगे, अभी ऐसा तुमको करवाएंगे, बहुत मॉडर्न तुम लग रहे हो। जैसे लोग बोलते हैं कि शेक्सपियर बहुत NRI टाइप लगता है, उसको थोड़ा इंडियन कुछ करवाओ, तो धोती वोती पहनाएंगे। अभी मैंने किया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने। What a name. या तो मैं उसमें मुंगेरी बना था, जो दूध वाला होता है। ओह, हाँ, तो आई वाज प्लेइंग दूध वाला, तो वो एटलस वाला साइकिल, 2 डब्बे डाल के, वो डबल मीनिंग वाले डायलॉग्स, वो मैंने किया। एक मैं ऑटो वाला बना था, क्योंकि इसका बहुत डिमांड आ रहा है कि Fantasizing, people are फैंटेसीज बहुत है, वो yeah. करवाया। फिर डॉक्टर बनवाया था एक में, फिर फोटोग्राफर, फिर ये लोगों का बहुत होता है। like if
लाइक हर इंडियन लड़के का बचपन से एक बार तो ये दिमाग जाता है करियर ऑप्शन चूज करियर ऑप्शन काश मैं जॉनी सिंस बन जाऊं या मैं कोई एडल्ट स्टार बन जाऊं Yeah. सो डू यू थिंक लाइक being someone being in India can actually opt this as a career? I don't want them to. क्योंकि मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं. ये जो नाम हुआ है, जो भी मेरा हुआ है, इसके लिए मैंने बहुत चीज़ों का मुझे संघर्ष करके मैं यहाँ तक आया हूँ. और आई डोंट वांट एनीबडी टू गेट इनटू ऑल दैट. लाइक माई कज़न्स हैव ब्लैक लिस्टेड मी. गाँव नहीं जा सकता. अभी जैसे मेरे फैमिली में एक शादी है और क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि मुझे नहीं लाया जाए. In fact, if I go to my hometown, I have to stay in a hotel. You know, I can't go to my relatives' places and all. तो मैं नहीं चाहता कि कोई ये परसू करे. मैं चलो बहुत वेज में लकी हूँ. मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया. दे आर सपोर्टिव. बट आई डोंट थिंक एवरीबडी इज़ ब्लेस्ड. जोश में लोग कर लेंगे पर उसके जो रेपरकशंस होते हैं, आई डोंट नो इफ दे आर रेडी फॉर दैट. Okay, so like people still are very Very, very, very. Do you feel कि I totally agree with the sacrifice and all of that because it's tough. It's tough. It's because of the whole mindset of the Indian people and all of that. But as like if you talk about generally like adult films, it's mainly the male audience that is consuming Yeah. the whole thing. Being a male in that particular scene, people are not actually coming to see watch you. And you know what I have noticed when they are horny. जब उनको हवस चढ़ रही है, आपका फिल्म देखते ना, मैसेज आएगा, सर आपका फिल्म देख रहा हूँ सर, बहुत मज़ा आ रहा है. दिल वॉच में भी दिल मैस्टरबेट. फिर गाली देंगे. आई सी आफ्टर 20 minutes दे हैव मैसेज्ड. अबे इस गंदगी गंदा काम करे, अच्छी शर्म आती है. post nut clarity. तो मैंने ना एक पैटर्न देखा. फिल्म स्टार्ट होने से पहले दे गेट ऑल एक्साइटेड. इवन इफ यू गो ऑन दोज साइट्स, आप कमेंट्स देखेंगे ना, टाइम में देखता हूँ. सो व्हेन दे हैव स्टार्टेड वाचिंग दे आर ऑल एक्साइटेड. दे स्टार्ट मैसेजिंग मी, स्क्रीनशॉट्स भेजेंगे, सर ये सीन. फिर देख लिए, शायद दे हैव हिला लिया, सब काम हो गया, सोने का टाइम है. फिर दिस इज हाउ द परसेप्शन इज. Okay. विमेन के लिए तो और भी मुश्किल है. Yeah, I was coming to that only. कि do you feel कि मतलब it is easier? Not, I won't say it's easier for either of them, but you have it less like difficult than the female. Yeah, in a way, because I have मतलब I choose to be happy. I choose to be कि अब क्या करना है, ये कर रहा हूँ, फेमस हो गया हूँ, फिल्में सबने देख लिया, I can't escape. बट गर्ल्स के लिए बहुत मुश्किल है. आई मीन मैनी ऑफ देम मतलब एवरीबडी कम्स इन दिस इंडस्ट्री फॉर मनी. मैं भी आया था, यू नो, टू अर्न समथिंग ऑन अ पर डे बेसिस. कर लेते हैं, फिर बाद में मैंने सुना है घर से नहीं निकल पाते. जब एक लड़की थी, उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ तो उसके एनिमी ने यही वीडियोस उसके बिल्डिंग में दिखा के उसको बिल्डिंग से निकलवा दिए. और This is the problem in This is the India, problem. bro. This is in India only. और वो लोग सुनना भी नहीं चाहते कि ये कहाँ शूट हुआ है, आउट ऑफ इंडिया शूट हुआ है, जो भी. बस तुमने किया है, तुम इस बिल्डिंग में नहीं रह सकते. बेचारी को बहुत टाइम लगा फिर घर पाने में. फिर कितनी लड़कियों ने तो नाम चेंज कर दिया है, शादी कर चुके हैं या तो शादी करने जा रहे हैं, और इसी वजह से शादियाँ टूट जाती है. तो ये बहुत हो रहा है. But do you think like this whole particular industry, like since you are from it, if you want to get married at this point, you find someone and you really love her and you want to get married, will it be very difficult? वेरी डिफ़िकल्ट. बिकॉज एक तो मैंने जितना डेटिंग वेटिंग किया बीच में, इंडस्ट्री के बाहर की लड़कियाँ मतलब स्टार्टिंग में दे गेट ऑल अट्रैक्टेड कि यू आर फेमस, व्हाटएवर, यू आर लाइक दिस पॉर्न स्टार, व्हाटएवर. आफ्टर अ पॉइंट दे रियलाइज कि ये शायद दिस इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी. और या तो इवन इफ शादी चलो छोड़ दो, यू आर जस्ट डेटिंग फॉर फन, दे विल नेवर अंडरस्टैंड योर इतनी सारी लड़कियां क्यों फ़ोन कर रही हैं, Yeah. इतने सारी लड़कियों के साथ कोलैब्स क्यों कर रहे हो. एक वीडियो गया, दूसरा आ गया है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. फिर आप सेट पे अगर सपोज दे हैव कॉल्ड यू, कुछ भी बोलो, दिल स्टार्ट डाउटिंग यू. इवन इफ यू आर शूटिंग अ नॉर्मल सीन, हाँ तुम तो कर चुके होगे, तुम झगड़े. तो आई हैव रियलाइज्ड. और अगर इंडस्ट्री की है तो आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर पाओगे, मतलब अंदर से जलोगे ना. Of course, ह्यूमन of मेंटालिटी. course. Yeah, yeah. अब सोचो, आज मैं छाया हुआ हूँ, मेरे पास बहुत काम है, कल शायद वो हिट हो गई, उसको काम मिल रहा है, मैं घर पे बैठा हूँ, तो मैं तो जलूँगा. और मुझे पता है सेट्स पे क्या होता है, शूट कैसे होता है, मुझे पता है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, इट्स लाइक अ कर्स हो जाता है But इफ यू do you- गेट फेमस. But do you think you would want to like date or maybe marry someone in the same industry? नो, बिकॉज आई हैव नोटिस्ड जनरली भी मैं देख रहा हूँ जो हमारा कल्चर हो रहा है अभी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट पीपल.
Yeah. नॉर्मली आज दोस्ती शुरू हुआ है, कल झगड़ा हो चुका है, फिर और सब गुस्से में जाके दे विल फक समवन. यही आजकल का True, वो है. absolutely true. आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो, नोबडी वांट्स टू वर्क ऑन इट, सीधा दे वांट फक समवन, देन दे विल थिंक हाउ कैन आई वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. आई एम ऑल्सो डूइंग दैट. सो मैं जब खुद को चेंज नहीं कर सकता, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम समवन. एंड एवरीबडी इज यंग, एवरीबडी इज रेस्टलेस, रैश, और एवरीबडी वांट्स टू टच द स्काई, और ऑप्शन सबके पास बहुत हैं. True. तो आई वॉज सरप्राइज टू सी दिस गर्ल आई वर्कड विद, शी इज़ अ पॉपुलर अडल्ट फिल्म स्टार, शी इज़ ऑल्सो यूजिंग टिंडर. तो मुझे लगा इसको फिर टिंडर क्यों चाहिए अभी, इतना तो शी गोज आउट ऑन सेट्स एंड ऑल. सो यू सी एवरीबडी हैज़ 5 ऑप्शंस दीज डेज. Oh yeah. तो वो शादी तो भूल जाओ. और अभी जो क्रिकेटर का हम सुन रहे हैं, एलिमनी जाने वाला है Yeah. 70%. तो सोचो मैंने इतना मेहनत हार्ड वर्क से अर्न किया है, तो फिर who wants to get into all that? So marriage is definitely out of the window. Okay. And tomorrow if I want to have kids, it's going to be very tough for them. You know? Absolutely. So कल स्कूल जाएंगे, दोस्त बनेंगे, और बच्चे हैं, कुछ ना कोई बोलेगा, they'll get into some kind of a trauma, and obviously they will Google me. Makes Their sense. friends will Makes Google sense. me. Yeah. Everybody Googles me. Hmm. I mean, so अभी पता नहीं 5-10 साल बाद इंटरनेट पे क्या होगा, आई डोंट नो. मतलब अब सोचो कि शायद वो आ जाएगा सामने वीडियो, True. It can yeah. it can be possible. है ना. जैसे हम कुछ सोचते हैं, Yeah, ad गूगल आ पे जाती है. जाता है, वो हाँ. आता है ना, तो बाद में आई थिंक वो दिख जाएगा फिर ऐसे. सो आई कांट गो थ्रू ऑल दैट. लाइक मुझे एक कॉलेज के लिए आया था इनविटेशन एज अ गेस्ट, क्योंकि वक्त था जब मैं टीवी करता था, मुझे गेस्ट करके बुलाते थे फॉर ड्रामा कॉम्पिटिशन, फैशन शोज, यू नो, एज अ गेस्ट. मैंने उनको बोला, मैम आप मुझे बुला रहे हो, आपको शायद नहीं पता, बट आई एम अ वेरी पॉपुलर एडल्ट फिल्म स्टार. आप बच्चों को सामने, मतलब मैं जाके वहाँ, ऑब्वियसली दिल गूगल में. शी वॉज शॉक्ड एंड देन शी सेड हाँ नहीं करते हैं, बट डोंट माइंड. मतलब मैं चाहता हूँ आप मुझे नहीं बुलाओ. Oh. इवन मेरे अपने सोशल मीडिया पे मैंने एक वो किया कि 21 साल के नीचे के लोग मुझे देख भी नहीं सकते, मेरा ना आए, लाइक एज रेस्ट्रिक्शन होता है ना. आई हैव डन इट टिल 21. But that's a very good initiative from your end. Yeah, that yeah, You yeah. are very aware about. Yeah, I'm very aware situation. because initially I thought it's all fun and games. दुनिया ख़त्म हो रही है, सब मरने वाले हैं, मैं 4-5 पॉर्न फिल्में कर लूँ, कौन देख रहा है. बाद में मैंने देखा कि उसके मैं कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, लड़कों के होते हैं ना, मेरे ही वीडियोज़ आ रहे हैं. So I realized कि अरे बाप रे, फिर लिखा अरे ये तो वही है ना, and some of them don't know I'm on in that group. Oh. So अरे ये तो वही बंदा ना, वहाँ रहता है, वो उस दिन पार्टी में आया था, और मैं बैठ के सबके कमेंट्स पढ़ा, अरे वो है इस ग्रुप में, किसी ने लिखा. Then I started getting these messages. तो मैं अभी जैसे मैं बिल्डिंग में आया, जैसे मैं गाड़ी में बैठा, ड्राइवर देखता है, ऐसे करता है, सर कहाँ जा रहे हैं, शूट है क्या. तो मैं कुछ सुन रहा था, मैंने देखा क्या शूट नहीं, अच्छा आज शूट नहीं है. ओह माय गॉड. तो आई रियलाइज्ड कि यू कांट एस्केप इट. Okay. और मेरी कुछ फिल्में हैं जो पायरेसी में जाते हैं. हम वी शूट आउट ऑफ इंडिया, पर जब वो इंडियन साइट्स पे या फॉरेन साइट्स पे जाते हैं, उस पर 90 मिलियन 100 मिलियन व्यूज़ होते हैं. Oh damn. Shit. तो मैं खुद को गूगल करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, यू नो. और हर वीडियो पे मेरा नाम भी होता है, जैसे बाकी के ऐसे जनरल टर्म्स होंगे, इसने उसको पेला 14, यू नो, दे राइट ऑल दिस फनी थिंग्स. मेरे में लिखा हुआ शेक्सपियर फकिंग स्कूल फ्रेंड और पड़ोसी. So your name is also very unique. सो आई एम सरप्राइज कि एवरीबडी मेरा फेस देखते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, दे रिलेट, ये वही बंदा है. अब जैसे मैं लिफ्ट में खड़ा था, एक बार 2 लोग आए, so I can lip read them, you know. So ऐसा I can't escape, you know, especially men. आजकल तो women also like जैसे मैं अभी आ रहा था, मैं खड़ा था, मैं आपको पूछ रहा था ना कौन सा फ्लोर है, लड़कियां ऐसे देख रही हैं मुझे. तो मैं पहले ये सोच रहा हूँ दे आर लुकिंग एट मी बिकॉज आई एम अट्रैक्टिव, और दे आर लुकिंग एट मी बिकॉज दे हैव सीन मी समवेयर. Okay. सो यू नो, सो आई, और देख के जैसे मैं कहीं आ रहा था एयरपोर्ट पे, एक आदमी आया, he clicked pictures with me, I posed, his wife clicked pictures with me, that a child, बोला बच्चे के साथ, बच्चे के साथ तो मत दिलो कम से कम. So I draw the line. Yeah, that's actually a very good thing to do. Yeah. You know, like where you should be there and where you should not be there. But I want to know about something, like since you are sexually very active, Yeah. since when you're shooting and everything, does this like kill that sexual drive you have in? Not at all. Like, does it make sex very normal for you? It actually makes very interesting. Okay. So some of these girls,
I don't know them. Okay, like आप generally suppose you meet a girl at a party, you at least you've met her at a party, you've spoken to her for Yeah. 10-15 minutes, नाम नंबर जो भी, नंबर भी नहीं लिया, चलो गाड़ी में बैठे, हमारा सीधा हम बेड पे मिलते हैं, सीधा Yeah. कपड़े खोल के, Exactly. मुझे वो मज़ा आने लग गया है. That is very thrilling. एंड ये एक्सपीरियंसेस शायद मेरे साथ नहीं होता. आई वुड हैव बीन मैरिड बिकॉज आई एम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल हिंदू बैकग्राउंड. तो ब्राह्मण वैसे बहुत सारे दल हैं जो मेरे गांव भी पहुंच गए थे. मेरी दादी को धमकी वमकी भी दिया था. तो आई डोंट नो इफ आई शुड टेल माई व्हाटएवर कास्ट और व्हाटएवर. तो जैसे मैं शायद इन लोगों से नहीं मिलता, इन लड़कियों से. फिर लोगों के सामने परफॉर्म करना. Yeah, how is that like? Matlab, I feel you are performing with a set of people you already know again and again because that is more convenient. तो and comfortable. crew maybe I know. Yeah. So, like, I wanted to ask you, like, since you are I know very, what's the question. it has become very exercisive thing for you to do it every Normal. day, to have sex every day in front of camera. Is it still very exciting, or the sexual drive is less now? Very. It's actually increased. Oh, It's like sex. अब जितना करोगे, you get better at it. Oh, And then also, obviously अगर आप 3-4 दिन का गैप लेके करोगे तो it's फटता है, बम फटता है. But I think मज़ा आता है. जितना आप करोगे, आप बहुत कुछ सीखते हो. जैसे पहले क्या होता था, आप वही 4-5 पोजिशंस. अभी कैसे है, आपको आप कैमरा के लिए कर रहे हो तो वो अलग एक, इट्स लाइक एन आर्ट. आप जैसे नॉर्मल किस करते हो, यू आप जुबान मतलब आप लिप्स जब टकराते हैं आप कैसे खाते हो. बट कैमरा भी यू कांट ईट, यू देयर हैज़ टू बी गैप. जैसे ये लिप्स और ये लिप्स ऐसा दिखना चाहिए. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. सो इट्स कम्प्लीटली, थोड़ा देखिए जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे आपने किस किया तो अपने होठ को ऐसे छोड़ा, ऐसे पकड़ा, ये अलग है रियल में करना. तो मुझे लगता है फिल्म में जो भी हम कैमरा पे करते हैं, ऑफ कैमरा करते हैं, दोनों का मज़ा अलग है. बट मेन ऑर्गेज़म तो वही है. बट एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट. अब अभी अगर आप मुझे पैसे वैसे देंगे तो शायद मैं एक्टर बुला लेंगे तो आई एम रेडी. सो आई बिकम दैट ओपन राइट नाउ, यू नो. कि एक बार मुझे याद है हम एक फॉरेन कंट्री में शूट कर रहे थे. तो वी लैंडेड, वी हैड टू चेंज 2 फ्लाइट्स. देन वी हैड 3 hours ऑफ ट्रैवल. पहाड़ों पे पूरा क्रू को चक्कर आ रहा था. हम लोग पहुँचे और आई वॉज लाइक आई एम रेडी टू शूट. एवरीबडी वॉज लाइक आई यू सीरियस. और मैंने, लोग सोचते हैं हम कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं. आप नॉर्मल खाना जो भी वहाँ का खाना आप खा के आए हो. तो ऐसा है, इट्स आई एम ऑलवेज हाई ऑन एनर्जी. आई एम ऑलवेज, यू हैव टू लव योर जॉब. यू कैन नेवर बी डिसइंटरेस्टेड. लाइक आपको पॉडकास्ट करना है, यू मस्ट बी रीडिंग, यू मस्ट बी नोइंग आजकल के टॉपिक्स क्या है, ट्रेंड में क्या है. Same with me. I have to love my job. I have to love my actress. Even if I'm not attracted to her, I have to find beauty in her. And मुझे लगता है कि जो what works for me is अनजान लड़कियों के साथ करने का मज़ा अलग है. जैसे आप लड़की से मिलते हो, आपका 1 घंटा 2 घंटा 2 दिन 3 दिन महीनों जाते हैं पटाके बेडरूम तक आने के लिए विथ कंसेंट एंड ऑल. हमारा सजा धजा के उनको भेजा जाता है विथ कंसेंट, विद वीडियो बाइट्स. एंड हमारा तो प्रोसीजर अलग है, तो उसका थ्रिल अलग है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. इट्स लाइक यू फील लाइक अ किंग, राजा महाराजा जैसे होते हैं ना वैसे. सो आई एन्जॉय दैट. और अलग भी क्रू होता है ना, तो आई हैव नो इश्यूज़. आई हैव बिकम वेरी थिक स्किन नाउ. आप मुझे प्रोफेशनल क्लियर हो जाता है जो भी हमारे कंडीशंस होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस. तो वी जस्ट स्टार्ट शूटिंग एंड काम ख़त्म करो, पैसा लो, दूसरे सेट पे जाओ, वहीं भी यही करना है. तो इट्स फन. Like, I want to follow up on this particular topic more. Yeah. Like, is there a particular change in your diet that leads you to be more like efficient in bed? That How do you last that long? yeah. So lasting, I'll tell you, it's very situational. Suppose if the girl is very hot, you'll come quick. So you tell them, I scream कि I'm coming, please capture this. तो आपका जो orgasm है वो कैप्चर कर लेंगे. तो एक उनको बड़ा सीन मिल गया, बाकी सब फेक में वो लोग निपटा लेंगे. Okay. ऐसा भी होता है. या तो क्या होता है कि, पर मेरे केस में ना उल्टा भी हुआ है. अभी क्या होता है, देयर इज अ प्रेशर ऑन यू टू लास्ट लॉन्ग, है ना, हमेशा. Of course. मेरे में उल्टा है, आई हैव टू कम फास्ट फॉर द कैमरा.
हाँ, क्योंकि क्या है, हमारा जो भी हमने जैसे कुछ बुकिंग किया है, जगह की बुकिंग है, कोई विला में शूट कर रहे हैं, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए, वैसे नहीं, यू डोंट हैव द एंटायर डे, क्रू खड़ा रहेगा और इतने बड़े बड़े कैमराज, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, बूम होता है, लाइट्स होते हैं, और वो कम्प्लीटली दे आर मूविंग अराउंड। तो इट्स नॉट फॉर योर पिकनिक, यू आर ऑन अ प्रेशर, मतलब आपको करना है ऐसे, ये पोजीशन दिखाना है, खड़े होकर करना है, मिरर पे करना है, ये यूज़ करना है, वो करना है, तो यू हैव टू कम क्विक एक्चुअली। उल्टा है, उसको एडिट करके सजा के दिखाएंगे जैसे बहुत लंबी फिल्म है, स्लो मोशन डाल देंगे। इट्स वेरी, हमने एक एक दिन में मैंने 6 वीडियोस किए हैं, तो छोटे छोटे होते हैं, बट वो ऐसा दिखाएंगे ना जैसे ये थर्ड सीजन आ गया, थर्ड एपिसोड है, एक ही दिन में सब हुआ है। वो लड़की गई, मतलब यहाँ पे उसका सीन खत्म हुआ, वहाँ गई, टचअप करके आई, शी जम्प्स, बेडशीट चेंज करते हैं, थोड़ा कुछ चेंजिंग हो जाएगा, आपको लगेगा सीजन 2 आ गया, उसी दिन शूट हुआ है। तो इट्स लाइक दैट। और हमारा क्या होता है, आई टेल यू व्हाट हैपेंस इन माय केस, ये जो भी लड़कियां आती है, यू विल बी सरप्राइज्ड, मेनी ऑफ देम आर वर्जिन्स, एंड आई आस्क देम, आप सच में ये करने आए हो, मतलब इंडिया से यू कम टू दिस कंट्री, फर्स्ट टाइम प्लेन्स में बैठे हैं, दे हैव नेवर बीन ऑन अ एरोप्लेन, सम ऑफ देम आर मैरिड, दे हैव चिल्ड्रन, दे हैव हस्बैंड्स। मैं तो पहले उनको 1 घंटा बैठ के बहुत सारे सवाल करता हूँ, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो क्या, किसी ने आपको कुछ फोर्स किया है, कुछ परेशान, सबका एक ही होता है, पैसा चाहिए, कोई बीमार है, किसी को ट्रीटमेंट करना है, जो भी, देखो अपना सबका प्रॉब्लम होता है। मैनी ऑफ देम आई जस्ट न्यू मदर्स, दे हैव जस्ट डिलीवर्ड अ चाइल्ड। तो हम सीन कर रहे थे, एक सेट पे ना डायरेक्टर बोलता है मुझे, उसका बूब्स को ज़्यादा शेक मत करना, शी विल स्टार्ट मिल्किंग। तो हम डॉगी वॉगी हम कर भी नहीं पाए, पोजिशंस जो होते हैं, हमने एक ही पोजीशन में फिल्म किया, बिकॉज शी हैज़ जस्ट डिलीवर्ड अ चाइल्ड। और फिर हम शूट कर रहे हैं ना, आवाज़ें आ रही हैं, खुआ जो बेबी वॉइसेस, तो मुझे लगा शायद बिल्डिंग में किसी की बेबी हुआ है, विला में जो भी, यहाँ हम शूट बहुत सेक्लूडेड, पता चला इनकी ही बेबी थी दूसरे रूम में विथ हर हस्बैंड। हस्बैंड इज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, शी गोज, शी फीड्स, एंड उनके बॉडी से ना पूरा मिल्क का स्मेल आ रहा था, बहुत एक वियर्ड स्मेल था, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बट मैं अपनी काम की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरली अबाउट एनीथिंग, बट वो एक स्मेल आ रहा है, क्या स्मेल है ये, कोई मिल्क मॉइस्चराइजर लगाया गया, क्या है ये, पता चला रियल शी इज़ मिल्किंग। एंड डायरेक्टर बोलती है, अरे अरे शॉट लगाओ, शी इज़ लाइक दैट। एंड देन ये किस्सा था जहाँ पता था सबको, मुझे ही पता नहीं था, क्योंकि सारे लड़कों ने मना कर दिया था, और मैं तो हूँ ही, मतलब मैं तो कूद जाता हूँ, और मुझे पता है नहीं, और सबको पता है शेक्सपियर तो कर लेगा, ही हैज़, उसको कोई भी दो, कुछ भी चलता है, उसको सिर्फ अपने पर डे से मतलब है। तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया, ओ गॉड, मतलब कैसे, हाउ विल आई स्टार्ट। लकीली इट वाज सॉफ्ट पॉर्न, तो इतना कुछ दिखाना नहीं था, बट वो जो मूड मेरा हुआ, मैंने कैसे किया, और शी वाज सो पुअर, उनका जो पेटीकोट था पूरा फटे हुए, मुझे इतना रोना आ रहा था लिटरली। और वो कान में बोल रही है, सर आपको तकलीफ है, अब मुझे पता है आप तो बहुत बड़े स्टार हैं, आप तो टीवी इंडस्ट्री से हैं, प्लीज़ कुछ बोलिएगा मत, मुझे प्लीज़ रेकमेंड कीजिएगा, दूसरी बार मुझे बुलाए। लिटरली अबाउट टू क्राई। ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं। कान में बोलते हैं कि मेरा जस्ट ये हुआ है, यहाँ हाथ मत करो, वहाँ पे मुझे पेन है, आई एम लाइक गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। So mostly people are in this industry for money only. देयर इज़ नो अदर रीज़न। अभी कुछ लड़कियां आ रही हैं टू गेट फेमस। मैंने देखा भी है, उनका मतलब एक लड़की थी सेट पे आई थी, शी वाज ओनली 20। तो मैंने उनको 10 बार पूछा, आप क्यों आए हो, आप चाहेंगे तो आप टेलीविज़न में भी मेन हीरोइन का ना सही, सपोर्टिंग रोल तो आपको मिल ही जाएगा, सजा के आपको नहीं मुझे यही करना है, मुझे वो करना ही नहीं है, डायलॉग कौन बोलेगा, ऐसा बोलते हैं, कौन करेगा ये, आओ कपड़े खोलो, पेमेंट लो और जाओ। सो डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट औरतों का डिफरेंट थिंकिंग है। अभी गर्ल्स आर वेरी चिल्ड आउट, क्योंकि देखते हैं कि इंडस्ट्री ऐसी है, फिर कोई उनको बोलता है कि मैं करके आई हूँ, तुम जाओ, तो इट्स चेंजिंग। दो आई डोंट वांट देम टू कम, बट जिस तरह से नए नए फेसेस लॉन्च हो रहे हैं ना, आई गेट वरीड फॉर देम। मतलब हाउ डू दे कन्विंस देयर फैमिली, उनको देख के लगता है ये छोटे शहर से होंगे या गांव से होंगे, कैसे ये लोग वापस जाते होंगे, आई फील बैड फॉर देम। So मतलब it's mostly the रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर बोलेंगे मेरी बहनें हैं, बहन का स्कूल है, मैं पैकेज में आई हूँ, और शॉट ख़त्म हुआ, हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं। एक लड़की मुझे याद है, तो कमिंग बैक टू टाइमिंग वाली जो बात आपने कही,
उसमें क्या हुआ था ना, तो ये लड़कियां जो हैं ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है. सम ऑफ देम हैव नेवर हैड सेक्स, या तो किया होगा, मज़ा नहीं आया होगा, जो भी. मुझे देखते हैं दे गेट वेरी एक्साइटेड, ओके, दे आर लाइक पैशनेट. तो उनका मैं देख रहा हूँ, दे आर कमिंग, मतलब उनका ऑर्गेजम होते ही जा रहा है. आई कैन लिटरली सी, वो पूरे रूम में ना स्मेल आ रहा है उनके कम का. फिर बोलते हैं सर मैं थक गई हूँ सर, जल्दी आप अब निकालो और शूट ख़त्म करो. तो अब मेरा हमेशा एक फंडा रहता है कि लड़की को कंफर्टेबल कराओ, शी शुड बी हैप्पी, शी इज़ द रियल स्टार ऑफ द शो. तो उनके कंफर्ट के लिए, अब मैं अगर इजैकुलेशन नहीं दिखाऊंगा तो प्रोड्यूसर मुझे पैसा नहीं देगी. तो आई हैव टू कम फास्ट, आई हैव टू टेल माई सेल्फ, आई हैव टू थिंक समथिंग, आई हैव टू बी मोर इरोटिक एंड आई हैव टू कम फास्ट. तो ये जो उल्टा है मेरे साथ कि लास्ट लॉन्गर इज़ इन रियल लाइफ. ऑन कैमरा इट इज़ वेरी टेक्निकल, समटाइम्स इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो लड़कियों का क्या होता है, हमने स्टार्ट किया, शी इज़ लुकिंग लाइक अ ब्यूटी क्वीन, लिपस्टिक, ब्लो ड्राइड हेयर, बाद में सब मेकअप उतर चुका है. यू कैन सी हर पिम्पल्स एंड हर पैचेस एंड you're like, God, how am I going to fuck her now? That is a problem. And you have to come, and she has come, so it's crazy. And her coordinator वहाँ खड़ा है, यार ऐसे करना जल्दी करना. अब उसको देखो, डायरेक्टर बोले खत्म करो यार, लेट हो गया. God, there's so much pressure. How much interruption is there? Oh, a lot of interruption. That's just bad. And there, हमारी जो lady producer, she just keeps walking as if, you know, पार्टी चल रही है. She just goes, चल रहा है ना, कर रहे हैं ना, हाँ मैं जा रही हूँ, मैं खा. And they're talking. We are like fucking and we want focus, and they are like, खाना आपके लिए क्या मंगाया? I'm like, non-veg. It's like that. Can you imagine? It is that funny. Okay. So and the girl, और हम कर रहे हैं. तो एक बार क्या, एक थ्रीसम सीन था. तो मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मैं तो स्टार्ट हो गया. एक लड़की थी, 2 लड़के थे. दूसरे वाले का हो ही नहीं रहा है. तो वो प्रोड्यूसर आके उसको बोल रही है, मेरा सीन चल रहा है, आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है. दूसरे को बोल रही है, मैम मेरा तो हो रहा है ना, सीन तो ख़त्म करने तो बाद में आप बात करो. वो सॉरी बोल रहा है, मेरा शॉट चल रहा है. सो द प्रोड्यूसर वॉक्स इन, वॉक्स आउट, एंड इट इज़ क्रेजी. एंड द कोऑर्डिनेटर, दे आर ऑल ऑन पर वीडियो, दे गेट पेमेंट. अनलाइक मी, आई गेट पर डे. मैं शूट करूँ नहीं करूँ, आई गेट माई पर डे. दे आर ऑन पर वीडियो. सो मेरे साथ ख़त्म करेंगे तो दूसरे के साथ उनको स्टार्ट करना होता है. सो दे आर लाइक, सर जल्दी कर लो. तो आई हैव टू एक्चुअली कम क्विक. तो मेरा उल्टा है. सो ये जो लॉन्ग लास्ट, ये सब मेरे को ज़रूरत भी नहीं है. Okay. जैसा आप हो वैसा ही रहो. One thing I really wanted to like ask you, it is a मतलब I don't know if it's concerning or not, but it's like India में or in the world only, porn is something like, it's like, can I say the word porn? Of course you can. So it's like it's becoming a little serious because people are, you know, like watching too much porn, and then the actual sex life is getting affected. Teenagers nowadays have like issues with, because as you said, everything, it's a movie that you're doing, you're playing a role in the movie, but people perceive it as their fantasy, and that affects a lot of sexual life of teenagers, people in general, middle-aged people, aged people, all of that. What is your take on like that particular aspect of like I this think, role? मतलब how can you get inspired by porn? Tell me. It's not inspiration, I How would can say. you take that to be real life? People do. People do. I mean, मैंने इतना पॉन देखा है. अब luckily I got into porn, that is a different story, but I have never compared a woman to what I've seen. You know, that is your own judgment, that's your own conscience. Use logic. मेरे हिसाब से मेरे सारे क्लासमेट्स या जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, नोबडी कंपेयर्स. यू हैव टू बी लेवल हेडेड. वो पूरा एक ड्रामा चल रहा है. इट्स मतलब आप अगर देखेंगे उसमें हस्बैंड चला गया, सेल्समैन आया, ये होता है क्या रियल लाइफ में? इट्स ऑल ड्रामेटाइज्ड, राइट? होता भी होगा It's तो fantasy. बहुत कम. It's at the end of the day, it's fantasy that Fantasy. you're recreating. सो ये करना वो करना, यू कैन गेट इंस्पायर्ड इन अ वे. लाइक आई लर्न अ न्यू पोजिशन कॉल्ड रिवर्स काउ गर्ल. ये मुझे नहीं पता था. ये मैंने तो इट कैन बी ऑल्सो वेरी एजुकेशनल, BDSM ये सब. बट हाउ कैन, मतलब आई डोंट थिंक दिस इज़ इवन वैलिड. और जो लोग इससे मतलब दे आर गेटिंग, क्या बोलते हैं, बर्बाद होने, दे मस्ट बी बर्बाद इन रियल लाइफ ऑल्सो. अगर आप उसको देख के ऐसा बन रहे हो तो यू डोंट हैव अ लेवल हेडेड कॉन्शियंस. It's not even मतलब so when someone is in, okay, क्या I mean मतलब सी उसके कितने बेनिफिट्स हैं. सिंगल लोगों का वही आसरा है, पॉन देखो, खिलाओ, सो जाओ, आपको अच्छी नींद भी आएगी. डोंट गेट एडिक्टेड. आई डोंट थिंक एनीबडी गेट्स एडिक्टेड टू पॉन. आप बताओ, हाउ कैन यू गेट एडिक्टेड? इफ़ यू हैव नथिंग टू डू इन लाइफ, देन यू विल.
अगर आपने वो मूवी देखी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, उसमें वो Yeah. क्या बताता है, फोकस ऑन योर वर्क बट मैस्टरबेट, मैस्टरबेशन के लिए आपको पॉर्न देखना पड़ेगा, बट ही नोज हिज जॉब ना. तो बी स्मार्ट, हैव योर ओन गोल्स. इफ यू आर सिंगल फाइन, और आजकल के ज़माने में पीपल प्रिफर टू बी सिंगल, सो वॉच पॉर्न. उसमें क्या है, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि वॉच पॉर्न, बट हाउ कैन यू गेट इंस्पायर्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉर्न? टेल मी. आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड. It's just It that is for people mazza. Yeah, I totally agree. What you're doing is like for entertainment purposes at the end of the day. But people who are like, not even people, young boys Yeah. who are just starting out watching porn, they feel that is how sex feels like, right? Because they obviously are uneducated about this aspect. Because I am from Berhampur, which is a small city, not a small, it's called the Silk City of Orissa. I used to watch porn, but I never got like yehi real life hai. Everybody used to watch, and all my classmates are doing well. तो it varies. अभी जो लोग गाड़ी चला रहे हैं वो देखते हैं, बट अपना काम भी करते हैं. घर जाके देख के मिला के सो गए, बात अलग है, यू नो. बट हाउ कैन यू गेट इन कि ये रियल लाइफ है? आई थिंक ये बुलशिट है. उल्टा इससे you will feel better. You're bored, you can watch it for fun. I sometimes watch, I don't masturbate, I just watch कि क्या चल रहा है, क्या नया पोजीशन है, because मेरे लिए it is like a class. Yeah, of course. what is have your to- favorite position, let's say? So I'm very easy peasy. So what suits me is missionary, because you can look at her, you can kiss, you can smooch, you can play with the mangoes, as per going with your podcast. So you can play with the cherries, and then you can also hold the peach. I like it. If there's a big mirror, I would go for the doggy pose. You can see yourself. You can watch her. It's actually like a shoot. Okay, and then there is reverse cowgirl, which I really like, and then there is a wheelbarrow. But I think I'm a very lazy person, so I'll go with missionary. And I think a lot of girls like missionary. And actually, that's where you can actually perform. You can look into your partner's eyes, and you can watch their expressions. I'll find it more romantic also. Like what kind of women you are attracted to while you are shooting? Like this is your particular type. I don't know if I should say this, but I love Oriental faces, As in? Thailand type faces, Oh. Oh, Japanese faces, Asian faces. Oriental. I love that. So that is I love those faces. I find them very erotic and very sexy, because when I was a child, I read this book, Memoirs of a Geisha. So Yeah, it's a but- Japanese yeah, thing. yeah. So real life story again about I don't know what that term they call those girls. They're not escorts or prostitutes. They are called something. Tea houses में काम करते हैं. If you read about it. तो मुझे तब से एक वो था, Oriental faces. I like those almond shapes eyes होते हैं ना, बड़े बड़े होठ. They're very fit, nice silky है, long है. मुझे अच्छा लगता है. I like fit, athletic, because I can lift them and do gymnastics with them without injuring my back. So, Makes sense. but most of my films, I have co-stars who are plus size, क्योंकि they look appealing on camera. Yeah. And there is बहुत खेलने को होता है. तो मैंने एक्चुअली देखा मेरा कोई टाइप नहीं है अभी, बिकॉज आई हैव डन इट ऑल एज ग्रुप्स, ऑल रेस, ऑल कम्प्लेक्शन, यू नो क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग शहर के यू नो फ्लेवर्स एंड ऑल. सो अभी मेरा कोई टाइप है ही नहीं. पर ऐसा बैठ के अगर सोचूं तो मे बी आई गो फॉर ओरिएंटल. Matlab, if I ask you, it's okay if you don't want to answer this. But till what will be the exact body count of it? Matlab, abhi tak how many you have like? Okay, I think. See, I've done around 300 films. Oh damn! Shit, bro. Tough to beat. And also have a very active off-camera life. Okay. So I meet a lot outside also because of my films, and prior to that also because I was a model, I was traveling. So I don't know क्या होगा. Well, it's around 300 plus. एक टाइम था I had reached, I was counting, क्योंकि मेरा एक डायरी है. I write किसके साथ अच्छा हुआ, I give them marks. You see, my name is journal? Shakespeare, so I journal, yeah. That's wonderful. So I write and I click pictures. मतलब हम selfies लेते हैं ना, तो वो भी डालते हैं क्योंकि ये वो ऑनलाइन वाला जर्नल है. It's very beautiful. तो I think I reached somewhere around, at that time I was around 200-300. Okay. And after that, you lost the count. फिर वो पता है फिर भूल गया. तो वही होगा कुछ 300-400 पता नहीं. 400. How do you think, like, as you said, do you actively journal or like उस time पे?
सपोज आई एम सिटिंग इन द रूम, शॉर्ट होने में 6 घंटा है, क्या करोगे बैठ के? तो लिखो बैठ के यही सब, बिकॉज यू हैव टू गेट इन दैट जोन ना। आप बैठ के अगर कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ देखोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। तो मैं जब मेरा हमको एक रूम दिया जाता है ना, वी ऑलवेज गेट अ रूम, आई एम ऑलवेज वॉचिंग समथिंग, लर्निंग समथिंग, तो यू आर इन अ रोमांटिक मूड, तो ऑन एंड ऑफ आपके लिए बहुत ईजी होता है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता टू गेट ऑन। और मेरे से अभी लोगों को उम्मीद बहुत है कि अच्छा शेक्सपियर आया तो कुछ अभी होगा, प्रोड्यूसर इज़ वेरी एक्साइटेड, गर्ल्स आर वेरी एक्साइटेड, और मेरा फ़ोटो दिखा के उनकी कास्टिंग करते हैं कि ये लड़का है, ये इसका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, आप इसके साथ, तो दे आर मोर हैप्पी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैव कवर्ड मी, तो वो सब उनको भेजते हैं कि ही इज़ द गाय, इतने अच्छे फैमिली से है, इसके मॉम डैड ऐसे, तो दोज गर्ल्स गेट वेरी एक्साइटेड। सो बहुत क्या बोलते हैं, आशाएं लेके सब आते हैं सेट पर। How was the I was curious about when we like first got to know about you also ki how was the conversation like when you said your family and all of that did accept you and all of that, there is a lot of problem, Yeah. but like how was that conversation like? First, I started blocking all of them on my social media. Then I realized I had to archive and delete all my family pictures. Okay. तो वो एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, क्योंकि जैसे समटाइम्स आई ऑल्सो वांट टू पोस्ट पिक्चर्स विद माय फैमिली। Totally, yeah. आज सिबलिंग्स डे है या फादर्स डे है, मदर्स डे, आई कांट पोस्ट, आई कैन नेवर शो माई लव कि आई एम हैंगिंग आउट विद माई पेरेंट्स और फैमिली। शादियों में तो छोड़ो, आई कांट गो। सो फर्स्ट आई डिड दैट बिकॉज उनको पता नहीं था एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। जैसे लॉकडाउन में मैं चला जाता था तो लोग सोचते थे ये इसने अपने करियर में इतना काम नहीं किया जितना ये लॉकडाउन में कर रहा है, रोज़ चला जाता है नहा के। और फिर मैंने वो सूटकेस लिया, मॉम को मांगा, नया सूटकेस था, वो पड़ा था, तो बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला शूट है। क्या शूट है? कौन सा इंडस्ट्री खुला है? तो मैं उनको झूठ बोल रहा था। फिर ना माई डैड्स एन इंग्लिश प्रोफेसर, ग्रोन अप किड्स को पढ़ाते हैं। उनको ही बच्चों ने भेजा, सर देखो आपका बेटा क्या कर रहा है। दैट्स हाउ ही फाउंड आउट। And what was the reaction? आई रिमेंबर उन्होंने एक SMS भेजा, ही यूजुअली सेंड्स व्हाट्सएप, उन्होंने एक SMS भेजा कि प्लीज़ कम होम, आई वांट टू टॉक टू यू। पहले आया, मैं फादर सेंड्स एक एक लाइन करके भेजते रहते हैं। और मैं आई रिमेंबर दैट वाज 26 जैन, ड्राई डे था, मैं एक रेस्टोरेंट में कहीं बैठा था, लिखते आई एम डेवस्टेटेड। तो मैं समझ गया। पता लग गया। And then what happened? आई डिडंट गो होम। लकीली एक फ्रेंड आई थी ना बाहर से, तो आई स्टार्टेड स्टेइंग विथ हर होटल में। फिर ही ऑल्सो अंडरस्टूड कि मैं आता था जब वो सो रहे हैं और चला जाता था, या तो दरवाज़ा खोलता नहीं था रूम का, कभी भी कुछ बोलो तो आई वुड फ़ोन पे हूँ ऐसे करके। देन ही सेड इट्स ओके इफ़ यू आर डूइंग इट, एक बार बात करो, क्यों कर रहे हो ये सब, व्हाट डू यू वांट, बी सेफ। सो और तभी कुछ वीडियोस बहुत वायरल हो चुके थे, तो एक क्या बोलते हैं, अनकही रह गया वो। ही इज़ ऑलवेज वरिड फॉर मी, लाइक अभी भी बोलते हैं आई वांट टू सी यू एट नाइट, टाइम पर आना, खाना खाया कि नहीं, दे ऑल वरिड फॉर मी। और फिर मेरे बहुत सारे आंटीज़ ने बोला कि उसके साथ सारी फ़ोटोज़ डिलीट करो जो भी सोशल मीडिया पे है। और कुछ दिनों बाद हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया, some people got arrested. That was like the worst time. मुझे लोग इतना डराने लगे, जबकि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसमें, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ कभी काम नहीं किया था और मेरे सारे शूट्स बाहर होते हैं, आउट ऑफ इंडिया। आई नेवर वर्कड ऑन इंडियन सॉइल, एक्सप्लिसिट वाले फिल्म्स। तो फैमिली थोड़ा डर गया, तो उस टाइम मैंने छोड़ दिया इंडस्ट्री। फिर मैं घर पे रहता था, तो फिर धीरे 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 दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग द फेम आई हैव गॉट। लाइक अभी हम जैसे कॉफ़ी शॉप्स, जैसे न्यू ईयर्स पे मुझे याद है, इस साल का न्यू ईयर वी वेंट आउट फॉर लंच एंड अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ केम एंड दे टुक सेल्फीज एंड पापा वाज लुकिंग एट देम, व्हाई आर दे टेकिंग योर सेल्फीज, व्हाट हैव यू डन, दे आस्किंग फॉर योर नंबर, आई सेड नो, ही वाज टेकिंग माई सेल्फी। सो नाउ ही इज़ अंडरस्टैंडिंग। अभी मेरे ऊपर एक फ़िल्म बन रही है, दिस इज लाइक अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म कमिंग, सो दे हैव फीचर्ड इन इट ऑल्सो। इवन एग्जैक्टली लास्ट ट्यूसडे हम शूट कर रहे थे उसका। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा, ये पहले दे यूज्ड टू थिंक आई एम ए स्ट्रगलर, ये स्ट्रगलर ही है, यही रहेगा, मैंने घर बनाया है, यही खाएगा मरेगा। अभी वो समझ रहे हैं कि अच्छा कुछ कर रहा है, मतलब यू नो शायद इस फेम से इसका कुछ भला हो जाए, कुछ और कर ले आगे, ही हैज़ होप्स। तो अभी थोड़ा चेंज आया है, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते थे,
जैसे ये पॉडकास्ट है, फिर बहुत सारे पब्लिकेशंस में मेरे इंटरव्यूज़ हैं. माई फादर बाइज देम एंड माई डैड मेक्स आईडीज़ और मुझे फॉलो करते हैं, फेक आईडीज़ है. तो मैं सोचा कितना ब्लॉक करूँ अभी मैं. तो अभी मैंने उनको ज़्यादा तो देखना है तो देखो बैठ के. सो मतलब रील्स वगैरह, क्योंकि कमेंट्स पढ़ते हैं ना बैठ के वो सबके, फिर वो डर जाते हैं. जैसे मुझे बहुत डेथ थ्रेट्स आते हैं. तो कुछ है ना सॉफ्टवेयर, जैसे लोग पहचान लेते हैं ये इसका फादर है. माई फादर ऑल्सो वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. उनके 10-20 हज़ार फॉलोअर्स हैं हर प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे, इंस्टा, ट्विटर पे. तो उनको लोग लिखते हैं गंदी गंदी बातें, क्योंकि उड़ीसा में ही इज़ ऑल्सो वेरी लाइक अ लिटरेरी फिगर. बहुत सारे टीवी चैनल्स पे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं. बच्चों को एजुकेट करते हैं. तो ही ऑल्सो सफ़र्स अ लॉट. माई सिस्टर को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. Like she's also quite popular on social media as an actor, anchor, activist. NGOs के साथ काम करती हैं, उनको भी बहुत परेशान करते हैं. Luckily mom is away from all this, but इन दोनों को तो एक फ़ोटो अगर मेरी सिस्टर ने मेरे साथ डाला, she gets bashed and गाली and all that, इसको सुधारो, ये भगवान का फ़ोटो डाल रहे हो, आपका भाई क्या करता है. इनफैक्ट मेरे गाँव में, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल village in Odisha called Jajang, which is near Kendrapada, which is a district. पूरा गांव है वो. तो वहाँ पे एक दल पहुँच गया, मेरे घर पे ऐसे खटखटाया और थ्रेट्स दिए दादी को, वो इधर आएगा तो हम उसको मार देंगे, ऑल दैट. तो शी गॉट वरीड बिकॉज शी इज़ अराउंड 70, शी इज़ नो मोर. ये तो 2 साल पहले की बात है. तो ये सब बहुत झेलना पड़ता है. So in future do you like planning to quit this or you? It's very uncertain right now. See, I'm getting like there's this top reality show that has offered me to be a part, to appear on it. देखते हैं, अगर वो हुआ तो शायद some avenues will open. Totally. अगर नहीं हुआ तो यही करना पड़ेगा और क्या. But do you think like the sacrifices as you mentioned, like there are a lot of them, and like the family is also getting a little, was getting a little still. It's still disturbed. I won't say they are proud of it. I mean they can boast about it. बट जैसे पहले एक ऐड आता था तो पापा सबको बोलते थे कि मेरे बेटे का ऐड आ रहा है चिप्स का, मोबाइल का, देखो इस चैनल पे आता है, इस सीरियल के बीच में आता है. अब ही कहाँ से. सो ही फील्स दैट कि आई कांट शो ऑफ. और मैं अभी किसके बच्चे किसी को स्विट्ज़रलैंड लेके जा रहे हैं, उनको शादियाँ हो रही है, जो भी होने वाली है, ये सब उनको नहीं है. दे मे नॉट सी अ ग्रैंड चाइल्ड फ्रॉम मी और व्हाटएवर. तो ये तो है उनको. But do you think all of that is worth it at the end of the day? I have become a little selfish in a way, like I want to take care of them because my dad has got Parkinson's. It's a nerve-related disease. So he needs us. So I think now he has become my child. Like he can't sit on his own. He can't stand on his own. So me, my mother, my sister, we are committed to his well-being all through the day and night. रात को भी वो वॉशरूम जाते हैं तो किसी ना किसी को जाना पड़ता है. तो अभी घर का हालत भी वैसा हो गया है. सो ये सब अभी मत भी करो, पापा का ध्यान रखना पड़ता है. उनको फिजियोथेरेपी के लिए लेके जाओ, हॉस्पिटल्स लेके जाओ, वीकली चेकअप से. उनको डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, बहुत कुछ हो गया है. Okay. तो टेक केयर ऑफ हिम एंड देन मॉम इज़ देयर, सिस्टर इज़ देयर. तो अभी इट्स सर्वाइवल हो गया है. यू हैव टू आपको जीना है. तो शादी वादी और करो नहीं करो, नोबडी केयर्स. और ऐसी हमारी ज़िंदगी बन चुकी है. जैसे मॉम डैड ने भी, दे इलोप्ड एंड दे गॉट मैरिड. तो relatives, they don't like each other. Like dad's side doesn't like mom's side and they are not close. So we don't have anyone questioning us and we live in Mumbai. We don't stay in Orissa. किसी relative के साथ we are not in touch कि कोई आके बोलेगा, ताना मारेगा, वो सब है ही नहीं. तो we just live our lives now. We just eat, take care of papa, go to work, whatever. So have you on set, have you ever fallen in love with an actress? Sometimes I get very attracted to them, like for the time being. बट ऐसा होता है, आई थिंक आफ्टर आई स्टार्ट हैविंग सेक्स, ऑर्गेज़म हो जाता है, फिर हम अपने अपने रूम चले जाते हैं, फिर प्यार चला जाता है. What do you feel like? चला जाता है. What do you feel love is like? Have you been in love? As you said, you were in a relationship for 5 years. Like Was that love? I think that love, abhi it's attachment. You get attached, you care, there's affection, there is lust. Lust आजकल बहुत है, care बहुत है, but love क्या है? Like see, मेरा जो रिलेशनशिप टूटा, वक्त लगा, बट शी गॉट मैरिड, आई मूव्ड ऑन. ट्रू लव आप कैसे, हाउ विल यू मूव ऑन? यू कैन नेवर मूव ऑन, है ना. शी स्टार्टेड मैसेजिंग मी नाउ.
Yeah, she's like, she messaged me in fact yesterday. इतना सेक्स करते हो, मज़ा आता है. She wrote something. I said, of course. And she said, ha, same, exact same expression था उसका. I said, now I'm a sex sport. मैंने उसको लिखा. तो she was like, हाँ. तो she watches all my films. क्योंकि शुरू में हम बात करते थे. तो उसने बोला मैं तुम्हारी ये फिल्म देखी, वो फिल्म देखा. सो वो देखती थी और उसको लोगों ने भेजा भी. तो शी स्टार्टेड मैसेजिंग मी फ्रॉम जनवरी. आई हैड एक्चुअली ब्लॉक्ड हर. समहाउ शी मैसेज मी फ्रॉम सम नंबर. मैंने उसका डीपी देखा. शी सेड तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, जो भी है, जो भी, यू नो. सो शी राइट्स, बट आई डोंट थिंक देयर इज लव. ये सब. Do you think there will be love in your life though? What is love for you then? I just want Money. to. Got it. सेक्स, वर्ल्ड ट्रैवल. You're getting all. मेरा सब एक साथ होता है, पैरेलल. वर्ल्ड ट्रैवल, पैसा, सेक्स. जैसे लोग वेकेशन पे जाते हैं, पूरा साल काम करते हैं. मेरा वेकेशन ही मेरा काम है. सो अभी और प्यार, आई डोंट नो, मतलब. और मैं ऑन एन एवरेज ना, You don't miss it out. मतलब ऐसे. मिल जाता है टेम्परेरी प्यार कुछ घंटों के लिए. तभी आप उसको समझ जाता हूँ मैं कि इसको क्या चाहिए. और मैंने अभी देखा है, ऑल द विमेन आई एम मीटिंग, आइदर दे वांट सेक्स, योर मनी, योर कॉन्टैक्ट्स, और दे वांट टू गेट फेमस, or they just want companionship. And if you give them what they want, they'll be with you. But that's self, क्या बोलते हैं, what's that word, unconditional love, ये सब I don't see. Like yesterday, a very good friend of mine was abusing me. तुमने मेरे साथ collab क्यों नहीं किया? I can see you are collabing with other girls. So I realized she's after me for a collab because she wants those millions of reach and, you know, views चाहिए reels पे. So I realized everybody wants something. वो ट्रू लव, वो मिस करना. और आप 5-10 मिनट उनसे बात करो ना, मेरे साथ ये भी वैसे ही है. But I mean, आई मीन नॉट डेरोगेटरी. Yeah, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है. मे बी किसी के साथ चेंजेस होते होंगे, ट्रू लव होगा, बट आई डोंट सी दैट कमिंग टू मी. I mean, for like, I feel you can also back me up with this. That true love, I feel personally, is true friendship. फ्रेंडशिप्स ऑल्सो डोंट लास्ट. ये लड़की के साथ 15 डेज हुआ था, दोस्ती करके उसने घर पे बुलाया था, खाना वाना खिलाया, पर उसका अल्टीरियर मोटिव यही था, कोलैब. Yeah. सो It's not friendship then. ये फ्रेंडशिप भी नहीं है. It's a transaction. Transaction. एवरीथिंग Yeah. इज ट्रांजैक्शनल. एवरीथिंग. पार्टी होती है ताकि सब कोलैब करें, सबके फॉलोअर्स बढ़े, क्योंकि दे हैव स्पेंड सो मच मनी ना, खाना पीना दिया है सबको. और हमारे इंडस्ट्री में तो सब फ्री का खाने के लिए जाते हैं. मतलब सब अपना अपना करते होंगे, बट पार्टी है तो विल एक्सपेक्ट फूड एंड ऑल. तो उनके फॉलोअर्स बढ़े. तो दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड हमारे सर्कल्स में. ओनली फॉर सोशल मीडिया. Okay. That's too shallow, don't you think? इट इज़ वेरी शैलो. Do you want ever feel like coming out of this? नो. क्योंकि आई नो ना वॉट मेरी लाइफ पहले कैसी थी. आई वॉज लाइक द ग्लोरीफाइड स्ट्रगलर. हमारे जो अंधेरी में जहाँ सारे स्टूडियोज़ है, महाडा है, यारी रोड है, वहीं मैं पाया जाता था धूप में, ये स्टूडियो से वो स्टूडियो, यू नो. तो आई नो दैट लाइफ. और अभी बीच में क्या हुआ, मैं एक टेलीविज़न शो कर रहा था दूरदर्शन के लिए. तो मैंने देखा, मैंने जो भी बाहर काम किया, इंडस्ट्री के बाहर भी मुझे काम मिलता है, वैसी की वैसी ही है, और भी ख़राब हो चुका है. कंपटीशन इतना आ चुका है. पहले तो फिर भी होप था, अभी इट्स होपलेस. तो ये भी छोड़ दोगे तो अब फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ज़िंदगी में. आई हैव जस्ट बिकम वेरी प्रैक्टिकल. यू नो, जो है उसको बटोर लो, उसको रखो, करो. जो भी लॉज हमारे इंडिया में है, अभी तो 18 OTT चैनल्स बैन हो गए. तो हमारे पास ऑप्शंस भी कम हो गए. और बिकॉज ऑफ दिस रेपुटेशन, बिग OTTs वोंट कास्ट यू. मुझे कुछ बड़े बड़े शो से निकाला गया है बिकॉज ऑफ माई रेपुटेशन, बिकॉज दिस गूगल यू, और गूगल में मेरा नाम मारोगे तो सब आएगा. सो बाहर जाके भी क्या करोगे? एक तो ऑप्शन नहीं है, या तो आप पूरा अपने आप को चेंज करो, 6 महीने बाद रीअपियर करो. वो सब कौन करेगा अभी, बताओ. अभी कल एक शूट मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली मैं जाके करूँगा. Do you think some producers and directors trick you into this? Especially Honestly, girls. no. Everyone is there. I'll tell you, it is very professional. There are coordinators. Okay, they contact these women. They say yes. Then there's a con call. Okay. Producer, director, उनको पूरा समझाया जाता है क्या सीन है. They send their work.
देखिए इस OTT पे आएगा, इस वेबसाइट पे आएगा, हैव यू सीन देयर फिल्म्स, ही इज़ द हीरो, गूगल हिम. देन दे सेंड अ वीडियो फ्रॉम होम कि मैं जो भी एक्ट्रेस, मैं कल ये कंट्री जा रही हूँ इनके साथ शूट करने के लिए. ये पहला वीडियो होता है. एंड दे गेट सम एडवांस एंड दे सेंड देयर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड. फिर उनका एक डॉक्यूमेंट बनता है विद अ थंब इम्प्रेशन. जब वो साइन करते हैं ना, उसका भी वीडियो बनता है कि दे आर साइनिंग इट एंड दे आर इन द सेंसेस. So it's very professional. वेरी प्रोफेशनल. देन दे गिव अ वीडियो बाइट बिफोर द शूट एंड आफ्टर द शूट. मैं आपको कितने सारे, मेरे फ़ोन में सिर्फ वीडियो बाइट्स है, सब लड़कियों के. बिकॉज आई टेक वन फॉर माई सेफ्टी ऑल्सो. So people do willingly. Yeah. And they contact me. You see my DMs on Insta. Sir, I want to work with, and real profiles, with lakhs and millions of followers, blue tick accounts. They message me, I want to do a reel with you. I want to come on your set. मैं देखना चाहूँगी, फिर मैं decide करूँगी. Sir, please, can we meet for coffee or whatever. So many women message me. They contact these apps क्योंकि वो लोग posters डालते हैं ना, looking for models and actresses. भर जाता है. Oh. Do you want to produce your own films, by the way, in the future? Lot of work. Lot of money also, but I mean, I am happy with what I'm making. Are you making more than a regular actor? Yes. मेरी इंडस्ट्री में at the moment, I don't think, I mean, I'm the most saleable actor. बहुत सारे OTTs, मेरे सारे प्रोड्यूसर्स जिन्होंने करोड़ों कमाया है मेरी फिल्मों से. They bought BMWs, they bought a house and all. So मेरी फिल्में they sell and people watch. So I don't want to get into production or direction or. like 5 years down the line, maybe. I don't think so. Because I know what I want. I love being in front of the camera. I have no desire of going behind the camera. You can clearly see that. I have no desire in going behind the camera. I always want to be, I want to fuck on camera. That's become my lifestyle now. So ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि प्रोड्यूस करो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स हैं बहुत. क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने क्या किया है ना, बहुत सारे हमारे जो लोगों को ब्लैकमेल्स करते हैं, दे ब्लैकमेल, फेक केसेस बनाते हैं एंड ऑल दैट. तो मैंने देखा है, सुना है, बहुत झमेला है उसमें. फिर आप उनको समझाओ, उनको कन्विंस करो, फिर उनके नखरे झेलो, पैसे डिमांड करते रहेंगे, फिर बहुत कुछ है. और OTT बनाओ, फिर बाहर जाओ, शूट करो, वहाँ बुकिंग्स करो. क्या है लाइफ? आई डोंट थिंक इट्स फन. और स्ट्रेस बढ़ेगा तो आप सेक्स कैसे करोगे? सही बात. Performance. स्ट्रेस फ्री रहोगे तभी तो करोगे आप. But do you think there is a shelf life to every actor, as like it's in the industry, there is a shelf life? Like I see a lot of actors in the West have retired, Yeah. famous porn stars. A lot of them are against the industry there. Even in India, a lot of actresses have quit the industry. Boys have got into jobs. मेरा एक दोस्त अभी he is into some kind of a job. He has left the industry. So ये भी है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है because maybe they feel कि हमने ये temporarily किया उस टाइम पे जब हमको ज़रूरत थी, मजबूरी था. अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. But I don't think so. I don't. is it easy for a regular person to get into this? Yeah, Like very easy. A normal boy Yeah. from anywhere. I don't want to give tips, but you just message those people on social media, send them your pictures of course nude body and few poses, और बस काम पे बुला लेंगे आपको. It's mainly about people should be willing to do it. Willing More to than do that, yeah. और बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि आ जाते हैं सेट पे, फिर कर नहीं पाते. अच्छा ये भी होता है. बहुत ऐसा होता Yeah, है, yeah, स्पेशली yeah. विद बॉयज. अभी गर्ल्स का क्या है, दे कैन जस्ट क्लोज देयर आईज एंड एक्ट, है ना. गर्ल्स तो वैसे भी बोलते हैं ना, दे फेक इट इन रियल लाइफ ऑल्सो. तो दे आर डूइंग इट फॉर मनी, बट बॉयज यू कांट फेक इट देयर. हाउ विल यू फेक इट? आपका दिखेगा नहीं तो आप क्या. सही बात. सो एम्बैरेसिंग. आई हैव सीन हाउ guys feel. Have you had like a very bad day on set also? So once what happened, जो लास्ट मैंने शूट किया, that was my last shoot actually. मैंने उसके बाद शूट नहीं किया है. पिछले साल की बात है ये, अक्टूबर की. We were shooting in this foreign location and हमारा 7 days का शेड्यूल हो चुका था. I had completed by जो भी था. बट जो लड़की थी वो लड़कों का हो नहीं रहा था. तभी कोऑर्डिनेटर बोल रहा है कि मेरी तो एक्ट्रेस आ गई, उसको उसका पैसा दो जो प्रॉमिस किया, क्योंकि वो भी कट लेगा ना. तो ही इज प्रेशराइजिंग कि 1-2 शॉट आप ज़बरदस्ती, मतलब ज़बरदस्ती नहीं, ख़त्म करो और उसको जाने दो.
तो वो लड़के का नहीं हो रहा है, तो ज़बरदस्ती मुझे 4 बजे सुबह उठाया गया। मैंने ऑलरेडी 2 सीन कर चुका था मैं, और मैं खा के सो गया था एसी में। मुझे उठाते हैं ज़बरदस्ती, बोलते यू हैव टू गो एंड फक नाउ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई वाज लाइक, मेरा कैसा है ना, मुझे कोई ऐसा अचानक उठा दोगे ना, आई स्टार्ट स्नीजिंग, मेरे आंखों से पानी आ रहा है। एसी में बहुत हाई करके सोता हूँ। तो एंड दैट प्रोड्यूसर इज़ लाइक, तुम अगर नहीं करोगे ना, तुमको तुम्हारा पेमेंट नहीं मिलेगा। तो मैं बोला जाओ, अभी जो भी होगा देखा जाएगा। मैं चला गया सेट पे। आई वॉज लाइक स्नीजिंग, आई से पानी आ रहा। मैं बोला मेरा नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट टेक एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, आई डोंट टेक अल्कोहल, आई डोंट स्मोक। तो मेरा नेचुरल प्रोसेस है, और मैं उसके लिए अपने आप को बनाता हूँ। जैसे मैंने बोला ना, मैं फिल्में देखता हूँ, मैं कुछ और सोचता नहीं, या तो मैं सिर्फ सेक्स चैट कर रहा हूँ किसी के साथ, तो मैं मूड में रहता हूँ। गया और मेरा स्टार्ट हो जाता है, जल्दी मेरा पैकअप हो जाता है। तो वहाँ पे कैसे होगा? एंड दैट प्रोड्यूसर है, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जब होगा नहीं, क्यों जाके वहाँ पे करना। वो लड़की से कम फक मी ना, शी इज लाइक दैट, कि उसको जाना है, कर लेते ना। मैंने बोला कैसे होगा आप बताओ। सो उन्होंने आई थिंक उसके बाद मुझे कास्ट ही नहीं किया। तो ऐसा होता है, हुआ है मेरे साथ। एक बार हम इतना ट्रैवल करके, जैसे मैंने बताया, तो पहला सीन हो गया, जो भी 2 घंटा 3 घंटा शूट, उसके बाद उनको एक और निकालना था, क्योंकि वो एक टाइमलाइन पे आता है ना। तो मैंने पहले तो हाँ बोल दिया। अब मैं सोचो 2 फ्लाइट्स 3 घंटा पहाड़ों पे, और एक राउंड हो चुका है, फिर बोला करो, तो मेरा हुआ नहीं। तो आई वॉज लाइक, मैं बैठा, फिर उन्होंने वहाँ का कोई लोकल मुझे कुछ पिलाया, फिर मैं चार्ट हो गया। Do these things like work, like the pills and all of this? Does that work in the long run? See, I think if you go to a doctor, tell your condition, they do certain blood tests, तब आप खाते हो, it might work. आप ऐसे ही खाओगे तो Have you tried वैसे? no, Like something like Viagra or something never. to last long. I've never felt so. See, I'll tell you. Last long. Yeah, I don't need to. So I've never had the urge, and I think these drugs should be taken under prescription. ऐसे मजे के लिए नहीं लेना चाहिए। Yeah, we can all tell that you were very conscious I about your drink health. coffee. Health also. I drink coffee. जैसे मैंने जैसे बोला, मैं बहुत आयुर्वेदिक चीज़ें खाता हूँ। जैसे you have lot of अश्वगंधा, शिलाजीत, it actually helps you, but it is not instant. आपको ये अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। काफी टाइम तक खाना पड़ेगा। आपको वर्कआउट्स करने पड़ेंगे बहुत सारे, जैसे केगल्स है, बैठे बैठे मैं कर रहा हूँ अभी। Which दिस is इज माई लाइफ स्टाइल नाउ। like यू कॉन्ट्रैक्ट, नॉट केगल्स, नहीं मालूम आपको? no, I know Kegels. like tightening your core. What is that? नो, No, it's डिफरेंट काइंड ऑफ अ कोर, हार्ड कोर। you have to. I You know it. have I to cannot tighten explain. your dick and loosen it up. Like when you go to pee, आपका पी हो गया, फिर you contract ना, so contract and then release. So there's a lot of workouts that you can do. जैसे HIIT क्लासेस होते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग्स, Yeah. Yeah. और केगल्स है, हिप थ्रस्ट है, केटल बेल वर्कआउट्स। Never. तो जिसमें जैसे यू आर डिक्लाइनिंग योर बॉडी, Mm-hmm. or you're doing squats, you're doing deadlifts, and every time you breathe in, breathe out, you have to contract your penis. So say your muscles become stronger. Okay. And the more you actually have sex, you get better. Your timing, your confidence, and it's also a mind game. Mind माइंड muscle आपका connection. साफ है, आप क्लियर हो, तो आप बहुत अच्छे से करोगे। आपका कुछ आपको खाई जा रही है ना, तो यू वोंट एंजॉय। सो ये है, बहुत कुछ है। What is like the one piece of advice you would want to give yourself in the past 5 years back, 10 years back? Or someone who is watching this. I will actually congratulate myself कि मैं मुंबई आया था, और मेरे सारे दोस्त they do all kinds of drugs, and बहुत सारे लोगों ने इंडस्ट्री छोड़ दी। They do a lot of fraud, लोगों को झूठ बोलना। मैंने कभी ये सब नहीं किया। मतलब मेरा काम शायद इस कंट्री में मानते हैं लोग कि ये गलत है, बट बहुत सारे कंट्रीज़ में ये लीगल है। और मैं जब छोटा था, मेरे सारे जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स थे, दे वर ऑलवेज वेरी प्योर। I've never cheated anyone, I've never done any kind of I've never hurt anybody, मतलब जहाँ पे उनकी गलती नहीं है। So I'm very proud of myself. Okay. And the way I channel my energy into some kind of acting, I didn't give up. I tried a lot of jobs. मैं पहले न्यूज़ प्रेजेंटर था। I used to be a news reader. मैंने कॉफ़ी शॉप में काम किया है।
I was a cabin crew, acting में हूँ, तो मैंने कभी give up नहीं किया. There has been low, high, whatever, but I have been always a very good person. I'm very proud of myself. So 5 years, मैं अपने आप को more than giving advice, I will congratulate myself that you've done well. You know, you have to love yourself, you have to congratulate yourself, you have to uplift yourself. And I think I've done well, and that's what I feel. Wonderful. Wonderful. Thank you so much for doing this. It was wonderful. Yeah. We were really excited to have you. You better watch my films now. Yeah, absolutely. Absolutely. Everyone watching, iske baad, you know what to do. Thank you so much, Thank Shakespeare. you so much for Thank you so much for Agreeing. having me, and you guys are so young and dynamic. I mean, I never thought of this. I mean, podcast and all, but you guys are doing so well, and congratulations, more power to you. And Thank you it's so very- much. You guys have good energy. Both of you have different kind of energy. You are different. You are different. So that's a very good thing, you know. You get variety. So you know, guests feel comfortable. And Yeah. I'm sure. we are glad that you felt Yeah, we felt felt that. comfortable. So that's it for this podcast. Please go check out him on Google and Everywhere. me and Kunark on Instagram, YouTube, Spotify, everywhere. Yes. Alright, Please. thank you so much for watching. Yeah, please like, share, subscribe. We will Yes. see you in another one. Bye bye.